Hello students, welcome to the show Vidya. Today I am here to take discussion on test 2, Polity and Constitution, part 2. Part 1 test discussion on the same topic, Polity and Constitution, has already been uploaded on our YouTube channel. If any of you haven't watched the video, you can go to the channel and watch the same. Also registration is going on, so if any one of you want to register yourself in this program CMAP 2023, they can call us on this number. Okay, so now let's start the discussion. So this is the first question. Parliament is the highest forum of debate and discussion on public issues and national policy. Discuss what needs to be done to arrest the decline in the productivity of parliament. This question is of 10 marks, 150 words. Okay, so before we start discussing the approach, okay, so let's have a look that why have we picked this question. So you can see here, this was in news how productive was the 2022 monsoon session. So we have taken it from The Hindu, and many newspaper had covered this news. Again, you can see this is taken from Indian Express, explained productivity in a parliament session marked by disruptions. So after this monsoon session, parliament productivity was in news, and all the relevant national newspaper covered this news, parliament productivity. Okay, so we thought that this topic becomes important. In fact, in the last decade अगर आप देखो तो पार्लियामेंट प्रोडक्टिविटी मोर और लेस हमेशा न्यूज में रहती है क्योंकि प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हुई है. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द अप्रोच ब्रीफली. सो द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले क्वेश्चन को इफ यू रीड द क्वेश्चन वंस अगेन, द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन डजंट हैव एनी डिमांड. इस स्टेटमेंट में देयर इज नो डिमांड. This is one statement given just for the context. Parliament is the highest forum of debate and discussion on public issues and national policy. Now, the second statement is discuss what needs to be done to arrest the decline in the productivity of Parliament. So, this is the main demand of the question, that you have to suggest some measures that can tackle the decline in the productivity of Parliament. So, this is the main demand of the question. Okay. Now, but you tell me, if you are going to suggest someone that you need to do this thing to tackle this problem, don't you think that you must mention the reason कि ऐसा हो क्यों रहा है. आपको रीजन भी बताना चाहिए. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज कि सर दिस हैज नॉट बीन स्पेसिफिकली डिमांडेड इन द क्वेश्चन. यस, एग्जैक्टली. This is not explicitly demanded in the question, but before you are going to suggest any measures, you must mention the reasons as well. ठीक है, आपको रीजंस भी बताने चाहिए. ठीक है. अब इसमें क्या है कि आपको आप चाहो तो कंटेंट इसमें कम दे दो. ठीक है, इसमें क्योंकि ये मेन डिमांड नहीं है, क्वेश्चन में डिमांडेड नहीं है, इसका कंटेंट हम लोग कम रखेंगे, बट इट शुड डेफिनेटली बी मेंशन्ड इन योर आंसर. ओके, and then again this important thing is that you have to keep this in mind, that you have to write your answer within 150 words. तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है. One thing is implicit demand, that is reasons. Then the main demand or explicit demand, that you have to suggest the measures to tackle the decline in the productivity of the parliament, which is the main demand of the question. Okay, if you see this table, the first thing is relevance. So where you can place this topic, productivity of parliament. So there is this topic, parliament and state legislature, in GS paper 2 syllabus. और वहाँ पे you can see structure and functioning. तो यहाँ पे you can place this topic. Okay. The keyword is definitely decline in the parliament productivity. This is the keyword given in the question. Apart from this, there is this directive word, discuss. ओके, डिस्कस इज द डायरेक्टिव वर्ड. तो डिस्कस मीन्स ओपन एंडेड, आप अपने हिसाब से आंसर लिखना है. ठीक है, मतलब कोई आपको बांध नहीं रहा है. सो बट यू हैव टू बी विद इन दिस 150 वर्ड्स. इंट्रोडक्शन कैसे इंट्रोड्यूस करें. सी देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन, मल्टीपल वेज. तो दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो, सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू अगेन the details of writing introduction or the ways of writing introduction. As far as this answer is concerned, you can give relevant data. See, the question is what needs to be done to arrest the decline in the productivity of parliament. So if you are suggesting someone, जैसे आप ऐसे अज्यूम करो कि यू आर राइटिंग समथिंग एंड द एग्जामिनर इज रीडिंग एंड यू आर सजेस्टिंग कि सर ये अगर कर लें तो हम लोग पार्लियामेंट के प्रोडक्टिविटी के डिक्लाइन को अरेस्ट कर लेंगे, टैकल कर लेंगे, इम्प्रूव कर लेंगे.
उनके मन में ये क्वेश्चन आता है कि पहले ये तो बताओ कि पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी कम हुई है या कम है. ओके. तो द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट गिव डाटा टू सब्सटेंशिएट दिस. देयर इज डिक्लाइन इन द productivity of parliament. Okay, so that's what is mentioned here, introduced by giving relevant data from the recent session of parliament. Okay, now coming on to the main part of the answer, which is body. Briefly mention a few causes of reducing productivity. जैसा मैंने यहाँ पे बताया था. ओके, कि आपको रीजंस बताना चाहिए. वैसा ही मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि आपको ये ब्रीफली मेंशन बताना, ब्रीफली बताना. नाउ दिस इज द मेन डिमांड. मेंशन मेजर्स टू अरेस्ट द डिक्लाइनिंग ट्रेंड. यहाँ पे हम लोग का कंटेंट्स ज़्यादा होगा in comparison to this part. Okay, then finally you can mention the significant. See, you are suggesting some reasons to some measures to arrest the declining trend, और उसके बाद अगर आप significance बता देते हैं कि why we should actually try to improve the make our try to make our parliament more productive, क्यों ऐसा करना चाहिए, अगर उस चीज को आप वहां पे हाईलाइट कर दें तो that will become your conclusion. So this was the brief approach. Now let's discuss in detail. I'm sorry, give me a moment. Okay. So yes, the first, as I told you, the first statement is not a demand. But since this statement was given, so the same thing can be rephrased here. Okay, आप चाहो तो इंट्रोडक्शन में इस स्टेटमेंट को रिफ्रेज कर दो, थोड़ा सा पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस को बता दो, एंड देन यू कैन रिलेट. सी, इफ यू रीड दिस, द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी. It makes legislation, debates and discusses issues of public importance. अब यहाँ पे आपने इतना मेंशन कर दिया, अब उसके बाद पार्लियामेंट का इफेक्टिवली फंक्शन करना ये क्रूशियल है, इस चीज को आप हाईलाइट कर दो. क्यों? क्योंकि ये एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है और ये डिबेट डिस्कशन करती है, लेजिस्लेशन बनाती है नेशनल लेवल पे. ठीक है. देयरफॉर इट बिकम्स क्रूशियल फॉर द पार्लियामेंट टू फंक्शन इफेक्टिवली विदाउट डिसरप्शन. तो ये बहुत ही क्रूशियल होता है कि ये फंक्शन करे विदाउट डिसरप्शन. अब देखिए, नाउ you are basically, moving towards the main demand. However, in recently concluded monsoon session of parliament, the productivity of Lok Sabha and Rajya Sabha stands at 47%, 47% and 42% respectively. Can you see the flow here? So this is what is demand, I mean, required in your answer. सी, इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, एज आई डिस्कस इन द प्रीवियस टेस्ट डिस्कशन वीडियो, दैट कंप्लीट्स योर आंसर एंड इट एक्चुअली गिव्स अ फ्लो टू योर आंसर. तो यहाँ पे आपने डाटा दिया, बट बिफोर गिविंग द डाटा आपने क्या किया, उसको रिलेट किया टू द कॉन्टेक्स्ट. है ना, कि पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंस को बहुत ही ब्रीफली एक लाइन में बताया. उसके बाद बताया आपने कि दिस, आई मीन, इट इज़ वेरी क्रूशियल दैट द पार्लियामेंट फंक्शंस विदाउट डिस्ट्रप्शंस. हावेवर, लेकिन अभी डिसरप्शन हो रहा है, एज वी कैन सी इन दिस डाटा. अब हम लोग देखिए कैसे मेन डिमांड पे मूव करेंगे. अच्छा, कैन दिस बी, आई मीन द ओनली वे वी कैन स्टार्ट आवर आंसर? नो, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ वेज, जैसा मैंने बताया हुआ है. सो ऑल्टरनेटिवली व्हाट यू कैन डू, सी इन द क्वेश्चन देयर इज दिस टर्म प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट. तो इफ यू वांट, यू कैन डिफाइन प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट एंड देन अगेन यू कैन कोट दिस डाटा. सेम डाटा की प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट पे आप सेम डाटा को कोट कर सकते हो. सो दैट विल ऑल्सो बी अ गुड इंट्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट इन द प्रोडक्टिव टाइम. तो एज फार एज पार्लियामेंट इज कंसर्न, उसका प्रोडक्टिव टाइम क्या होगा, कि कितने नंबर ऑफ आवर्स पार्लियामेंट हैज डिवोटेड इन मेकिंग लेजिस्लेशन, नॉन लेजिस्लेटिव डिस्कशन, क्वेश्चन आवर्स, बाकी तरह के जो काम है उसमें कैसे क्या टाइम स्पेंड हुआ. सो दैट इज व्हाट इज मेजर्ड थ्रू प्रोडक्टिविटी. So without disruption, out of the scheduled working hours that two houses are allotted. So this is what parliament productivity is. Again, you can quote data here. The same thing, in the recently concluded monsoon session of parliament, the productivity of Lok Sabha stands at this and the Rajya Sabha stands at this. You can mention the same data. यहाँ पे एक चीज है, सी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी. नाउ सी, if you want, uh, if you want, you can mention this statement, I mean the consequence of low productivity after the introduction itself. ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो you can take this same statement to the conclusion part है, आप इसको conclusion में भी लिख सकते हैं. ठीक है, बट
अगर आप यहाँ इंट्रोडक्शन के बाद लिखेंगे तो किसी भी चीज़ को ज़्यादा एलोबरेट नहीं करना, जैसे यहाँ पे कॉमास में मेंशन है आप वैसे ही कॉमास में इन स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट और टू स्टेटमेंट आप इसको लिख सकते हैं, बट बेटर इफ यू कैन टेक इट टू द कंक्लूजन पार्ट। ठीक है, एज आई टोल्ड यू दैट यू मस्ट राइट द रीजंस फॉर द डिक्लाइन। तो ये जो मेजर जो रीजंस हैं फॉर डिसरप्शन और यू कैन से द डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टीज नॉट अडेयरिंग टू पार्लियामेंट्री नॉर्म्स। तो जो पार्लियामेंट के नॉर्म्स होते हैं कि डिबेट डिस्कशन कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, कितना उनको टाइम पार्लियामेंट में रहना चाहिए, किस तरह का डिबेट डिस्कशन होना चाहिए, उन सब पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को दे पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट अडेयर, अननेसेसरी डिसरप्ट करते हैं। देन राइवलरीज बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन पार्टीज, सो आउटसाइड राइवलरीज को रिफ्लेक्ट करते हैं, सो दैट इज ओके। सो पॉलिटिकल पार्टीज में तो वो होना ही चाहिए, बट अपोजिशन पार्टीज का और गवर्नमेंट का जो राइवलरी है दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द पार्लियामेंट एज वेल। सो इवन इफ गवर्नमेंट वांट्स टू ब्रिंग और गवर्नमेंट ब्रिंग्स एनी नो legislation that is for the larger benefit of the nation, just for the sake of अपोजिशन पार्टी क्या करती है, उसको अपोज करती है और अननेसेसरी डिस्टर्ब होता है पार्लियामेंट। तो this is one of the cause, the rivalries between the government and the opposition parties. And then the last is absence of prompt actions against disrupting MPs. It has been seen many a time that even if some of the parliamentarians और कुछ political parties अगर वो बहुत ज़्यादा disrupt कर रहे हैं और उसकी वजह से पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी और पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शनिंग, और पार्लियामेंट को एडजर्न कर दिया जाता है, इवन देन द एक्शंस आर नॉट बीइंग टेकन अगेंस्ट देम। उनके लिए कोई प्रॉम्प्ट एक्शंस नहीं लिया जाता है, कई केसेस में लिया भी जाता है, बट जनरली देखा गया है कि अगर कई बार ऐसा होता है तो उनको कोई प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया जाता है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से पार्लियामेंट डिसरप्ट होता है। नाउ एज आई टोल्ड यू, सी यू कैन सी हियर दिस पार्ट शुड बी मेंशन वेरी ब्रीफली क्योंकि ये मेन डिमांड नहीं है। ओके, तो मैंने यहाँ पे बताया है कि यू कैन आई मीन मेंशन दिस पार्ट इन फ्लो चार्ट एज वेल। देखिए, फ्लो चार्ट हो गया, टेबल हो गया, कोई भी ऐसा इनोवेटिव टूल आप प्रेजेंटेशन में अगर यूज करते हैं तो उसका एक अप्रोप्रिएट प्लेस होता है। यू कैनॉट राइट द इंटायर आंसर थ्रू फ्लो चार्ट, वो बहुत ऑब्जेक्टिव हो जाता है, दैट शुड नॉट बी द केस। ठीक है, जो पार्ट्स पॉइंट्स में लिखे जाने चाहिए उनको पॉइंट्स में ही लिखना चाहिए। कुछ ऐसी जगह होती हैं, आइदर यू इफ यू सी इन द लास्ट 2-3 क्वेश्चंस आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप अगर केवल फ्लो चार्ट बना के अपने आंसर्स को दे रहे हैं, सो दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट इशू। बट इन जनरल एक आइडियल आंसर की मैं बात कर रहा हूँ, तो फ्लो चार्ट को आप हर जगह पे एकोमोडेट नहीं कर सकते। बट इन दिस पर्टिकुलर लाइक इन दिस आंसर आप देख सकते हो रीजन फॉर द डिक्लाइन, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, तो आप चाहो तो बेटर प्रेजेंटेशन की, यहाँ पे टाइम सेविंग की बात नहीं है, यहाँ पे जस्ट अपने प्रेजेंटेशन में आप एक कुछ नयापन अगर लाना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रीजंस फॉर डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी, आप इसको ऐसे करके देन 1 2 3 यू कैन मेंशन दिस पार्ट इन दिस वे, तो आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। और सिंस दिस पार्ट इज थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ओके, now moving on to the main demand of this question, measures to tackle the decline in productivity of the parliament. So the first thing is infrastructure support to MPs. कई बार ऐसे बिल्स होते हैं विच नीड्स एक्सपर्टीज। ठीक है, जो टेक्निकल नेचर के बिल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रिप्टो करेंसी पे बिल आता है, या फिर लेट से ब्लॉकचेन पे आता है, या फिर लेट से साइबर सिक्योरिटी पे आता है, तो इन दोज केसेस अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, एक्सपर्ट का हेल्प या और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, देन दैट विल हेल्प देम टू एग्जामिन द बिल मोर प्रॉपरली। तो अल्टीमेटली ये सब जितने भी मेजर्स हैं, ये क्या हेल्प करता है, ये कंस्ट्रक्टिव डिबेट करेगा और पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजिकल टूल्स। अगर एआई, मशीन लर्निंग, इस तरह के कोई टेक्नोलॉजिकल टूल्स को इंट्रोड्यूस करें जिससे कोई भी डाटा बहुत आसानी से वो रेफर कर सकें, कोई भी प्रीवियस बिल्स को बहुत आसानी से रेफर कर सकें, उनको कोड कर सकें, तो ये उनके डिबेट एंड डिस्कशन को इम्प्रूव करेगा। एंड in fact that will help them in reducing their time to I mean in finding these data and these facts. Okay, then number of days of sitting and number of sessions should be increased.
तो अभी आप अगर देखो, अभी आप अगर देखो, 1 सेकेंड। Average number of days of sitting in the last 2 decades, 76 days है इन द लास्ट 2 decades। लेकिन इनिशियल टू डेकेड्स इट वाज अराउंड 122 120 डेज। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे पार्लियामेंट का फंक्शनिंग डेटोरिएट हुआ है, ठीक है। तो एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था जिसमें ये बोला गया था कि वी शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज ऑफ सेटिंग, आई मीन मैंडेटरली इन केस ऑफ लोकसभा 220 days, एंड इन केस ऑफ राज्यसभा इट कैन बी इंक्रीज टू 108। ये एक प्राइवेट मेंबर का बिल आया था, तो आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। एंड देन द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, और द नंबर ऑफ सेशंस वुड बी इंक्रीज। सेम उसी बिल में ये भी था कि एज फार एज अभी अभी कितने सेशंस होते हैं, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन, अभी 3 सेशन होते हैं, ठीक है। सो सजेशन वाज दैट वी शुड ऐड वन मोर सेशन हियर, ठीक है, और वो सेशन 15 डेज का रहे। एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन अपोजिशन गेट मैक्सिमम चांस टू आस्क क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द पब्लिक इंपॉर्टेंस और पब्लिक इशू से जो रिलेटेड है, उस पर अपोजिशन को चांस मिले गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने का। तो एक एडिशनल 15 डेज का एक सेशन रखने की बात हो रही थी, दिस कैन ऑल्सो बी सजेस्टेड, ठीक है। पार्लियामेंट्री डिसरप्शन इंडेक्स टू मॉनिटर डिसरप्शन। सी, अभी हम लोग वी आर नॉट कैलकुलेटिंग कि हाउ मेनी नंबर ऑफ आवर्स वी हैव लॉस्ट बिकॉज ऑफ डिसरप्शंस। So if we can develop this parliamentary disruption index, then definitely we can monitor that these many number of hours have been lost because of disruption। और उसमें हम पिन पॉइंट भी कर सकते हैं किस मेंबर ने क्या किया, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों को। तो थ्रू इंडेक्स वी कैन मॉनिटर दिस डिस्ट्रप्शन। ये एक डिस्ट्रप्शन इंडेक्स बनाया जा सकता है। देन रेप्लिकेटिंग द शैडो कैबिनेट सिस्टम ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। यू मस्ट बी अवेयर कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या है कि हर मिनिस्ट्री के लिए एक शैडो कैबिनेट अपोजिशन पार्टीज क्रिएट करती है, ठीक है। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो अपोजिशन पार्टी ने एक फाइनेंस मिनिस्ट्री क्रिएट किया हुआ है, उसमें एक लीडर है जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को फॉलो कर रहा है, काफी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। सिमिलरली अदर मिनिस्ट्री जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री है, रेलवेज है, तो हर मिनिस्ट्री का एक शैडो कैबिनेट क्रिएट होता है जहाँ पे हर मिनिस्ट्री को जो मेंबर क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे उस कर रहे होते हैं, सो दोज आर बेसिकली पार्ट ऑफ दिस शैडो कैबिनेट। तो क्या होता है कि दोज मेंबर्स आर बेसिकली वेरी क्लोजली मॉनिटरिंग एंड एग्जामिनिंग व्हाट ऑल एक्चुअली आर गोइंग इन दीज मिनिस्ट्रीज, फाइनेंस हो या कोई भी मिनिस्ट्री हो, एंड देन अकॉर्डिंगली दे शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद देयर पार्टीज मेंबर्स। और इससे क्या होता है कि दे कैन आस्क वेरी कंस्ट्रक्टिव गुड क्वेश्चंस, और इनफैक्ट दे कैन सजेस्ट कि इसमें क्या चेंजेस लाया जा सकता है। तो दिस कैन ऑल्सो बी डन। तो अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी, मतलब कैसे हम लोग डिबेट एंड डिस्कशन को इम्प्रूव कर सकते हैं रैदर देन डिसरप्शन, बिना मतलब का कि इसमें क्या हो गया, आई मीन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग द बिल। अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान रखें तो जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगा सारे पार्लियामेंटेरियंस के पास, तो डिबेट डिस्कशन उतना अच्छा होगा। And in fact this will ensure the accountability of the concerned ministries as well, replicating the shadow cabinet वाले पॉइंट में मैं कह रहा हूँ। देन इनहेंसिंग फीडबैक मैकेनिज्म फ्रॉम पब्लिक। तो जितना ज़्यादा हम पब्लिक से फीडबैक लेते हैं ऑन एनी पर्टिकुलर इशू, तो कोई भी पब्लिक का जो इशू होता है और आप पब्लिक जब बताती है कि वी आर फेसिंग दिस इशू और इस चीज़ को इम्प्रूव किया जाना चाहिए, तो नो पार्टीज कैन डिनाई दैट। और पब्लिक का फीडबैक व्हेन वी कैन गेट इट फ्रॉम एनी वेबसाइट हो गया या कोई एप्लीकेशन हो गया, जैसे अभी माई.gov.in पे मंगवाया जाता है, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें जब पार्लियामेंट में डिस्कशन होती हैं, so this actually avoid the hurdles in implementation। effective use of parliamentary committee। तो as we discussed a few moment ago कि जो बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस ऐसे होते हैं जो दे लैक एक्चुअली एक्सपर्टीज इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ द बिल्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या होता है कि पार्लियामेंटेरियंस को तो सपोर्ट नहीं है एक्सपर्ट्स का, बट पार्लियामेंट्री कमेटी में दे कैन दे हैव दिस एक्सपर्ट सपोर्ट
they can take the service from the expert, like कोई भी consultant से, for example economist से, doctor से, कोई और professional body से, they take the expert opinion, and इससे क्या होता है, इनसाइड स्टडी, इनसाइड जो इन डेप्थ स्टडी होता है किसी भी बिल का, और जो विच प्रोवाइड अ ग्रेटर इनसाइट। देन इन्फोर्समेंट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पार्लियामेंटेरियंस, तो जो भी डिसरप्शन को कोई अगर इंडिविजुअल करता है या ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर पार्टी, या इन कॉम्बिनेशन अगर कोई करता है, देन स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट देम। और अगर ये होता है तो प्रोबेबली ये एक डेटरेंट की तरह दिस कैन वर्क। एंड अगर ये ऐसा होता है, कोड ऑफ कंडक्ट का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अगर होता है, तो मोर टाइम विल बी अवेलेबल फॉर द कंस्ट्रक्टिव डिबेट एंड डिस्कशन। So these are some of the measures through which we can tackle this decline in productivity of parliament। ये जो प्रॉब्लम है इसको टैकल कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी मोर रेलिवेंट पॉइंट, तो आप चाहो तो इनमें से किसी भी दो पॉइंट को क्लब करके एंड यू कैन राइट योर ओन पॉइंट। तो ये चीज़ है। नाउ कंक्लूजन में, सी एज आई टोल्ड यू, लाइक वाई पार्लियामेंट प्रोडक्टिविटी इज नेसेसरी, क्यों ऐसा पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, अगर उसके सिग्निफिकेंस को अगर हम हाईलाइट कर दें, तो दैट 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 विल बिकम आवर कंक्लूजन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द नेशन एंड इट्स इफेक्टिव फंक्शनिंग इज मच नीडेड फॉर द responsibility and accountability in the government. Parliament should continue focusing on spirit of 3 Ds, that is debate, discussion and deliberation। ठीक है। और एक चीज इफ यू कैन रिमेम्बर, मैंने बताया था, इफ वी कैन गो टू द प्रीवियस स्लाइड। हाँ, ये कैन यू रिमेम्बर दिस, ये वाले पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, कि अगर हम पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी को, इफ विल नॉट इम्प्रूव पार्लियामेंट प्रोडक्टिविटी, देन these consequences we might face, that we might not, rather we will face fewer bills will be passed, less time for MPs to ask questions, okay, and then use of more use of ordinances। ठीक है, अगर पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो पार्लियामेंट क्या होता है, गवर्नमेंट कौन सा रूट अडॉप्ट करती है, ऑर्डिनेंस का। तो these consequences can also be written in the conclusion। So this is how we could have approached this answer। Alternatively, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, Parliament is expected to examine all legislative proposals in detail, understand their nuances and implications of the provision, etc. Debate and discussion is an important aspect of functioning democracy, and these can only be ensured if productivity of Parliament improves। Parliament functioning below its optimal capacity will have a dire consequences, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, डायर कॉन्सिक्वेंसेस। आप सच एज में वो सब पॉइंट्स को आप चाहो तो कॉमास देख के लिख सकते हो, बट थोड़ा सा वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है, तो आप अपने हिसाब से सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। डिस्कस द रोल प्लेड बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इन डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। 10 मार्क्स, 150 वर्ड्स। ओके, अब इस क्वेश्चन में भी आप देखें तो दो चीज है, एक तो है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एज फार एज की वर्ड्स आर कंसर्न, एंड द अनदर वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। ठीक है, एक बार हम लोग इसका ब्रीफ अप्रोच देख लेते हैं। सी द टॉपिक इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इन आवर सिलेबस। ओके, आई एम सॉरी, ये यहाँ पे GS2 होगा। ओके, देन कीवर्ड्स एज वी वर डिस्कसिंग, RPA 1951 एंड डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब इंट्रोडक्शन है, राइट अबाउट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड RPA एक्ट। इसमें हम लोग डिटेल में भी देखेंगे कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। सी in the last test discussion video I told you the safest way to introduce any answer is to just define the keyword given in the question। ठीक है, अब यहाँ पे कीवर्ड क्या होगा, दो कीवर्ड ही हैं, RPA है और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। तो आप चाहो तो यू कैन डिफाइन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड देन रिलेट इट विद द RPA, और you can define RPA Act and you can relate it with the criminalization of politics। So both can be done। अभी हम लोग आगे देखेंगे। Then main body,
So discuss the role played by representation of people act. So we have to write the basic provision of RPA, and since we have to discuss it, so we need to ensure in our answer that we must mention this whether RPA has been able to decriminalize politics or not. उस पे भी हमें बताना है किस तरह से आरपीए ने अभी तक एज फार एज डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज कंसर्न उसके लिए कितना इफेक्टिव हुआ है, हमें उसके बारे में भी लिखना है. ओके, एंड देन वे फॉरवर्ड वी हैव टू सजेस्ट अगर लेट्स से कि आरपीए हैज बीन वेरी लिमिटेड इन कंट्रोलिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, देन अगर हम उस पे एंड कर रहे हैं तो हमें वे फॉरवर्ड इवन दो नॉट डिमांडेड बट उसको हमें बताना होता है. एंड उसको छोड़िए, वैसे भी डिस्कस जब होता है ना तो ये सारी चीज़ें इम्प्लिसिट होती हैं कि आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है. बट एट दिस आई मीन यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये वर्ड लिमिट ध्यान में रखना है, 150 वर्ड्स नहीं लिखना. ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें राइट अबाउट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड आरपीए एक्ट. अब देखिए, डिस्कस द रोल प्लेड बाय आरपीए 1951 इन डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन अगर आप पढ़ें, द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मीन्स द पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स. The participation of criminals in politics, that is the person with criminal background contest in the election and get elected as a member of parliament or state legislature. ये तो हो गया आपका criminalization of politics को you define. Now see, हमें डीक्रिमिनलाइजेशन के बारे में बात करनी, मतलब आरपीए ने किस तरह से रोल प्ले किया टू डीक्रिमिनलाइज इंडियन पॉलिटिक्स. तो पहले व्हाट यू आर सपोज टू डू, डोंट यू थिंक दैट यू मस्ट गिव सम डाटा कि अभी क्रिमिनलाइजेशन का आई मीन इन इंडियन पॉलिटिक्स व्हाट इज द स्टेटस ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. ओके, सो दैट डाटा मस्ट बी मेंशन्ड हियर टू सब्सटेंशिएट. तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, बहुत ही ऑथेंटिक सिविल सोसाइटी है जो इस चीज़ पर रिसर्च करती है. सो ये कोट किया जा सकता है. नियरली 50% ऑफ एमपीज इन द करेंट लोकसभा हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स एंड 29% ऑफ देम आर फेसिंग सीरियस क्रिमिनल चार्जेस. नाउ सी, ये क्या बताता है कि हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है. तो अब देखो, पहले आपने क्या किया, की टर्म को डिफाइन कर दिया एंड देन यू आर ट्राइंग टू रिलेट इट विद द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. क्योंकि रोल प्लेड बाय आरपीए एक्ट 1951 इन डीक्रिमिनलाइजेशन, तो कितने क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में. क्रिमिनल अब अगर मान लो ये रहता ही नहीं, तो फिर अगर ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी एमपी के अगेंस्ट में किसी भी तरह का क्रिमिनल चार्जेस नहीं होता, तो फिर हम ये सिंपली बता सकते थे कि बहुत अच्छा रोल प्ले किया है आरपीए ने. ठीक है, बट चूंकि हमें पता है कि आरपीए का रोल उतना इफेक्टिव नहीं है, तो वी मस्ट कोट सम डाटा हियर. और यहाँ पे एक कनेक्टिंग लाइन है. ये हमने क्या किया है, पहले क्रिमिनलाइजेशन को डिफाइन किया है, देन वी मेंशन सम डाटा टू सब्सटेंशिएट, then before moving on to the main demand, we simply can write one sentence: to prevent criminalization of politics, RPA 1951 contains several provisions related to disqualification disqualification for members of parliament and state legislature. ठीक है, तो अच्छा, ऑल्टरनेटिवली जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ऑल्टरनेटिवली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आप चाहो तो आरपीए को भी डिफाइन कर सकते हो एंड देन यू कैन कोट द सेम डाटा ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑफ एमपीज. इस चीज़ को भी आप ऐसा भी आप कर सकते हो. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वाज इनेक्टेड टू प्रोवाइड provisions for actual conduct of elections to the houses and qualification and disqualification of the membership of these houses. This was RPA 1951 एंड लिंक इट विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन क्रिमिनलाइजेशन. तो आप अब यहाँ पे आप समझिए कि अगर अगर आपने इफ यू हैव स्टार्टेड विद क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, देन कनेक्टिंग लाइन में आपका आरपीए आ रहा है यहाँ पे, एंड इफ यू आर स्टार्टिंग विद आरपीए, देन आपका कनेक्टिंग लाइन में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आ रहा है. वहाँ पे अगर आप स्टेटस बता दो, ठीक है. नाउ मेन डिमांड, डिस्कस द रोल, आई मीन द रोल ऑफ आरपीए इन डीक्रिमिनलाइजिंग इंडियन पॉलिटिक्स. ठीक है, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है आरपीए की, तो कन्विक्शन फॉर एनी ऑफेंस, सेक्शन 8 है इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर. किसी भी ऑफेंस में अगर कन्विक्शन 2 साल या उससे ज़्यादा है, देन
जो कैंडिडेट है दे कैनॉट कंटेस्ट इलेक्शन आफ्टर देयर रिलीज फ्रॉम द जेल फॉर 6 years. ठीक है. If any candidate is involved in the corrupt practices like bribery, undue influences, तो उसमें भी 6 years का they cannot contest election. If any of the candidates is practicing social crimes, untouchability, dowry, sati, etc., then 6 years. ठीक है. If any candidate is failed to file expense election expenses, तो उसके तहत भी डिस्क्वालिफिकेशन है. ठीक है. If any candidate is dismissed from government service for corruption, disloyalty to the state, तो उस केस में भी the candidate is disqualified for 5 years. Then penalties, there are penalties for providing incorrect or withholding information in an affidavit. ठीक है. बहुत सारी चीज़ें, एंटीसीडेंट्स, ये सब सारी चीज़ें बतानी होती है. अगर वो चीज़ें गलत बता दी तो उस केस में क्या होता है कि आपका डिस्क्वालीफाई हो जाता है. ओके. देन डिक्लेरेशन ऑफ डोनेशन रिसीव्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, सेक्शन 29C. अगर डिक्लेरेशन नहीं होता है तो क्या होता है, टैक्स रिलीफ पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं मिलता है. तो अल्टीमेटली ये एक तरह से जो एक ब्लैक मनी का फंडिंग है उसको रोकने में कुछ हद तक ये मदद करेगी. लास्ट वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ. ओके. सो दीज वेर द प्रोविजंस, रोल ऑफ आरपीए इन डीक्रिमिनलाइजिंग इंडियन पॉलिटिक्स. तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिसके थ्रू आरपीए डिस्क्वालीफाई करती है. ठीक है. नाउ यहाँ पे है डिस्कस द रोल प्लेड बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. ठीक है. तो हमने बता दिया कि ये सारे प्रोविजंस हैं. नाउ अभी हमें किस चीज़ पे आना है कि वेदर आरपीए 9 जो इतने सारे प्रोविजंस हैं इसके बावजूद भी, जैसा हमने डाटा कोट किया था. ठीक है. जैसा फर्स्ट पेज में हमने डाटा कोट किया था कि 50% ऑफ द एमपीज इन द करंट लोकसभा हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स एंड 29% ऑफ देम आर फेसिंग सीरियस चार्ज. इसका मतलब है कि ये सारे प्रोविजंस उतने इफेक्टिव नहीं हुए. सो दैट इज वाई यू कैन मेंशन गिव अ सवर्ड लिमिटेड इम्पैक्ट ऑफ आरपीए. ठीक है. और यहाँ पे आप थोड़ा सा बता सकते हो कि द परसेंटेज ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु हैव a criminal background has increased in fact from 24% 2004 टू 43% 2019. तो आप देख सकते हो कि ये इंक्रीज हुआ है. इसका मतलब जो इफेक्ट है आरपीए का वो बहुत ही मिनिमल है. ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप यहाँ पे चूंकि कुछ और डाटा भी आप कोड कर सकते हो. जैसे आप इफ यू वांट यू कैन कोड द फिगर्स एज वेल. ठीक है. एंड यहाँ पे एक और चीज़ है. इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एक एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि यस वी एग्री दैट आरपीए हैज नॉट बीन वेरी इफेक्टिव इन डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. तो ये 2-3 सेंटेंसेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. नाउ और ये जो लिमिटेड इम्पैक्ट की बात है ये और किस चीज़ से सब्सटेंशिएट होती है, लो रेट ऑफ कन्विक्शन. अभी तक इफ यू कैन चेक दैट आरपीए के अंदर जो कन्विक्शन हुआ है ओनली 11 टिल डेट, जिसमें आई मीन द पार्लियामेंटेरियंस और जो कैंडिडेट हैं दे हैव बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन. तो वो काफ़ी लो है, ओनली 11 टिल डेट. ओके. यू कैन क्रॉस वेरीफाई दिस डाटा बट दिस थिंग इज फॉर श्योर लो रेट ऑफ कन्विक्शन. ठीक है. नो रिस्ट्रिक्शन टू कंटेस्ट इलेक्शन इफ फेसिंग ट्रायल. देखिए कन्विक्शन यहाँ पे इफ यू रीड द फर्स्ट सेक्शन 8 अगर आप पढ़ेंगे, इफ एनी पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर 2 और मोर ईयर्स. वहाँ पे ऐसा नहीं कि सपोज किसी पे चार्ज फ्रेम हो गया एंड ट्रायल चल रहा है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. यू कैन कंटेस्ट द इलेक्शन इवन फॉर द सीरियस चार्जेस. ठीक है. करप्ट प्रैक्टिसेस डज नॉट इंक्लूड पेड मीडिया, हेट स्पीच, मनी पावर. तो बहुत सारे जो जो करंट इश्यूज हैं वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इंक्लूड नहीं है. तो फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात आती ही नहीं है. देन आरपीए एक्ट हैज नॉट बीन सक्सेसफुल इन कर्विंग द मनी एंड मसल पावर. बहुत सारे प्रोविजंस हैं कैसे पॉलिटिकल पार्टीज फंड्स लेती हैं. देयर आर सो मेनी प्रोविजंस बट इवन देन दीज आर बाईपास्ड. ठीक है. मसल पावर और मनी पावर, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को भी रिक्वायरमेंट होती है और कैंडिडेट को जो लड़ रहे होते हैं उनको भी पॉलिटिकल पावर चाहिए होता है. तो से दे यूज एंड दे बेनिफिट ईच अदर through money and muscle power. So these points you can mention under this subhead limited impact of RPA. कंक्लूजन कैसे कर सकते हैं. तो चूंकि आपने आरपीए के कुछ लिमिटेड इम्पैक्ट बताया कि कुछ इनफैक्ट शॉर्ट कमिंग्स आपने बताया है, तो व्हाट यू शुड डू हियर कि आपको यहाँ पे
वे फॉरवर्ड बताना है कि क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। जैसे इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन पे जो केस होता है तो उनके लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है, बट उनके इफेक्टिव फंक्शनिंग इज रिक्वायर्ड। देन अमेंडमेंट इन आरपीए, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि those who are convicted, they are barred from contesting election, so that can be amended, and even a person who is charged, है ना, कि उनके अगेंस्ट में हीनियस कुछ क्राइम्स हैं, then they should be debarred, है ना, फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो आरपी एक्ट को अमेंड किया जा सकता है। देन अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर वोटर्स, मतलब वोटर को अवेयर करना कि आपको वोट देते टाइम में किस कैंडिडेट को किस तरह से आपको एग्जामिन करना चाहिए, कौन कौन से एस्पेक्ट्स कैंडिडेट को देखो, सो दैट अगर वोटर्स अवेयर हो गए देन इनफैक्ट देयर विल नॉट बी एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लेजिस्लेशन। अगर हमें ही पता है कि हमें किसको वोट देना है, ठीक है, एंड जो जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उनको नहीं देना चाहिए, अगर इस तरह की अवेयरनेस आ जाए तो डेफिनेटली दे विल नॉट बी एबल टू रीच इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। देन penalty for political parties, the political parties who gives ticket to such candidate who have criminal background, they should be penalized, ठीक है। तो ये एक प्रोविजन डाल सकते हैं। एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स फॉर कैंडिडेट्स, देखिए अभी भी रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं कैंडिडेट्स का, ठीक है, बट इट शुड बी इजीली अवेलेबल। जैसे बहुत सारी चीज़ में विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से लोग अपने बहुत सारी चीज़ों को आज आज के डेट में कर सकते हैं। सिमिलरली इफ समवन वांट्स टू चेक द प्रोफाइल ऑफ एनी कैंडिडेट, वो बहुत ही इजीली अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है, तो वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। देन कंक्लूडिंग रिमार्क, आप इसी से रिलेटेड, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू decriminalize the entire political system by taking stringent measures as well as by enactment of required legislations। तो इसके अलावा भी इफ यू हैव एनी अदर कंक्लूडिंग रिमार्क यू कैन डू दैट। तो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे आप वे फॉरवर्ड और सजेशंस और मेजर, सॉरी ये नहीं होगा, वे फॉरवर्ड यहाँ लिख सकते हो, और उसके बाद आफ्टर यू फिनिश दिस वे फॉरवर्ड हियर, लेट्स से हियर, देन यू कैन स्टार्ट विद दिस कंक्लूडिंग रिमार्क। कंक्लूडिंग, अगर आप वे फॉरवर्ड लिखते हैं तो कंक्लूडिंग रिमार्क आप कोशिश कीजिए जितना छोटा आप लिख सकें उतना अच्छा। इट इज जस्ट टू कंक्लूड और कंप्लीट योर आंसर, दैट्स इट। अगर वे फॉरवर्ड नहीं रहता है तो आप चाहो तो 3 से 4 स्टेटमेंट में लिख सकते हो, बट कोशिश करो अगर वे फॉरवर्ड है तो उसको जितना छोटा आप लिख सकते हो, मैक्सिमम टू सेंटेंसेस, उससे ज़्यादा नहीं। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक दिस वाज सिंपल वन। अगर किसी को आरपीए के बारे में पता है तो इसमें कुछ ऐसा इंटरप्रिटेशन को लेके नहीं था। Now comes this question number 3. In a recent report, Parliamentary Committee has pointed out that National Commission for Scheduled Tribes is dysfunctional. ठीक है, again, like we have seen in the question number 1, this is also one statement. In a recent report, a parliamentary committee has pointed out that National Commission for Scheduled Tribes is dysfunctional. See, this statement doesn't have any demand in itself. इसमें कोई भी डिमांड नहीं है, बट ऐसे स्टेटमेंट जब भी होते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको एक कॉन्टेक्स्ट देते हैं, ठीक है। आप आंसर में उस एंगल को आपको लेके आना है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इसमें लिख भी दिया है इनफैक्ट इन दिस क्वेश्चन, इन दिस कॉन्टेक्स्ट एग्जामिन द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट वी डू, अच्छा ओके, इन दिस क्वेश्चन एज वेल, लाइक बिफोर मूविंग ऑन टू द अप्रोच, कैसे हमें अप्रोच करना है, लेट्स सी व्हाई वी हैव पिक दिस क्वेश्चन। So this was in news, as you can see here. National Commission for Scheduled Tribes is dysfunctional House panel. This is taken from the Hindu newspaper, और भी newspaper में covered थे, तो this was in news. So we thought, and in fact जो National Commission for Scheduled Tribe is a constitutional body, and constitutional body जो हमारे syllabus का part है, so we thought that this is an important topic for UPSC mains exam, तो हमने इस question को frame किया, okay. So basically we inspired from this news, and this was the idea behind this question. Now let's briefly discuss the approach. So yes, relevance, तो appointment of various constitutional post, तो ठीक है, ये हो गया। Now keyword is basically functions of NCRT, NCST, उसी के अराउंड नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, उसके फंक्शंस के अराउंड ही है ये क्वेश्चन, हमें उसी को एग्जामिन करना है।
अच्छा, ओके, विल अंडरस्टैंड दिस एग्जामिन का क्या मतलब है, अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। इंट्रोडक्शन, राइट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कंपोजिशन, सब्सटेंशिएट फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप एनसी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो कि ये कैसे क्या बना था, एंड देन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा आप चाहो तो थोड़ा एलाबोरेट कर सकते हैं, very briefly. Okay, so that will become your introduction. Then the body part is enlist the functions performed by commission. यहाँ पे एक चीज छूट गया है, यहाँ पे आपको उसमें मतलब चैलेंजेस या शॉर्ट कमिंग्स भी बता। ठीक है, ठीक है। सो दीज टू आर, दिस इज वन एंड दिस इज टू, दीज टू विल बी योर बॉडी, मेन बॉडी और मेन डिमांड। ठीक है। Then conclusion, see, if you are highlighting suggestion, then you must give some way forward, making the functions more effective. तो वो चीज़, और उसको आप काफ़ी ब्रीफली बता सकते हो। अगर आपके पास बहुत कोई इफेक्टिव पॉइंट नहीं है तो काफ़ी ब्रीफली बता दो, वैसे भी क्वेश्चन इज ऑफ ओनली 150 points। ओके। नाउ एग्जामिन जहाँ पे दिया हुआ है, एग्जामिन द फंक्शन, तो जैसे आपने यहाँ पे देखा था, एनलिस्ट द फंक्शंस, यू कैनॉट सिंपली राइट द फंक्शंस परफॉर्म बाय द कमीशन, so that will not be, do justice to this demand examine। जहाँ पे भी एग्जामिन होता है तो एग्जामिन मतलब आपको उसके चैलेंज या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है, किसी भी रिपोर्ट को जब आप एग्जामिन करते हो, ठीक है, तो उसमें आप क्या हाईलाइट करते हो, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जैसे अगर कोई मान लो आपने कुछ, फॉर एग्जांपल आप किसी डॉक्टर के पास, व्हेन यू विजिट अ डॉक्टर एंड डॉक्टर एग्जामिन्स योर हेल्थ, फिजिकल ऐसे ही एग्जामिन करता है बहुत सारी चीज़ों अपने टूल से, देन उसके बाद वो क्या करता है, कुछ बताता है आपको कि आप ऐसा करो, आप में ये प्रॉब्लम है, आप ऐसे ठीक कर सकते हो, फिर वो देन प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। सिमिलरली एग्जामिन द फंक्शंस, एग्जामिन द फंक्शंस, तो जो भी फंक्शंस है उसको तो लिस्ट करना ही है, एट द सेम टाइम क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे मेंशन करना है, एंड एट द सेम टाइम जैसा मैंने बताया वे फॉरवर्ड, तो वो आपका कंक्लूजन बन जाएगा। ओके, सो ये आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर किसी ने पढ़ा है तो ये इस चीज़ को जानता ही होगा। सो प्रीवियसली वी हैड दिस नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, ये कंबाइंड था। देन 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एससी के लिए, एसटी के लिए एक अलग से बनाया, एंड देन 338A, ये एक आर्टिकल इंसर्ट किया। ठीक है। So the same thing you can write in the introduction. In order to safeguard the interest of tribal population more effective, a separate national commission for scheduled tribe was set up by bifurcating the existing national commission for SCs and STs. This was done by passing 89th Constitutional Amendment Act of 2003, and a new article of 338A was inserted in the Constitution. आप इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा है रिलेट टू द कॉन्टेक्स्ट गिवन इन द क्वेश्चन, आप इसको कनेक्टिंग लाइन बिफोर मूविंग टू द मेन बॉडी, जैसे देखो ये इंट्रोडक्शन में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, आपको क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करो अपने आंसर को, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट जैसे मैंने बताया भी था कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा एलॉबरेट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ कमीशन के बारे में आपने बहुत ब्रीफली बता दिया कि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसको एससी एंड एसटी जो कंबाइंड बॉडी थी उससे अलग किया गया। सो दिस वाज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी। Now, the role of the commission is quite significant in safeguarding the rights of tribal communities. अब देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हो यहाँ पे। However, the report presented by Parliamentary Panel on Social Justice and Empowerment shows that the commission has been dysfunctional for the last 4 years and has not delivered a single report to Parliament. तो ये क्या किया आपने, द स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन उसको आपने क्या किया, सब्सटेंशिएट किया, या आप उसको बोल सकते हो एलोबोरेट किया द सेम स्टेट। तो क्या हुआ, आपने एनसीएसटी को, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को डिफाइन किया, देन उसके बाद यू जस्ट रिलेटेड द सेम विद दिस, कि जो इस कमिटी का जो फंक्शन है इज वेरी सिग्निफिकेंट, बट this committee, this commission is not functioning properly. In fact, the same has been highlighted in a recent report presented by parliamentary committee on social justice and empowerment। आप इस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द कमीशन, तो ये
बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, इसको आपने अगर पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो आप इसको पढ़ लेना। इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर व्हाट? Investigate and monitor all matters relating to the constitutional and other legal safeguard for STs and to evaluate their working. To inquire into specific complaints with respect to deprivation of rights and safeguards of the STs. ठीक है? To participate and advise on planning process of socio-economic development with respect to STs. ठीक है? To make recommendations related to the measures that should be taken to central government as well as state government, and to discharge other function for the protection, welfare and development advancement of ST. तो ये सारे, ये बहुत ही आपको, you can find these functions easily anywhere on the internet, तो आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रेसिडेंट भी कुछ अदर फंक्शंस प्रिस्क्राइब करता है, इफ यू वांट यू कैन मेंशन दैट एज वेल, ठीक है? सो दीज वर बेसिक फंक्शंस, बट merely mentioning the functions will not be sufficient. तो हमें क्या इसको एग्जामिन करना है, तो क्या ये फंक्शन परफॉर्म कर भी रहा है कमीशन? तो उसके लिए हमने क्या बताया था कि इफ देयर आर इश्यूज, अगर मान लो कर रहा है तब तो कोई बात ही नहीं, आप बता सकते हो कि हाँ। और अगर कर भी रहा है फिर भी आप बताओगे एसटीज के जो सिचुएशन है उनको कैसे, कंडीशन कैसे इंप्रूव हुआ है। लेकिन अगर नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, दैट्स वाई दिस वाज इन न्यूज की जो जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इज डिसफंक्शनल, तो देयर मस्ट बी सम इश्यूज विद द फंक्शनिंग, तो उस चीज़ को हमें बताना, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल पेंडेंसी ऑफ रिजोल्यूशन, बहुत सारे केसेस है, पेंडेंसी ऑफ रिजोल्यूशन आप अगर देखो, सो दिस इज 50%, 50% केसेस अभी रिजॉल्व ही नहीं हुए, ठीक है? देन फंक्शनिंग एट लेस मैन पावर पे फंक्शन कर रही है कमीशन, ऐसा बोला जा रहा है, एंड द सेम वाज हाईलाइटेड इन द रिपोर्ट कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा हाई रखा गया, तो मैन पावर उससे मिल नहीं पा रहा है, ठीक है? सो lack of applicant, eligibility bar set too high, okay? Then फंक्शनिंग में इशू है, दैट्स वाई देयर इज स्पाइक इन केसेस फाइल्ड अंडर SC/ST एक्ट, ठीक है? एनसीआरबी की रिपोर्ट्स यही बताती है। देन अनेबल टू इवन हैविंग दिस कमीशन, जो ट्रैवल पॉपुलेशन है दे आर बीइंग एविक्टेड, है ना, फ्रॉम वेरियस प्लेसेस इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, अनेबल टू स्टॉप एविक्शन ऑफ ट्रैवल पॉपुलेशन। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल कोट करना चाहिए, somewhere you must quote example to substantiate। जैसे यहाँ पे आप वेदांता वाला केस आप बता सकते हो, जो डोंगरिया कोन ट्राइबल पॉपुलेशन को रिप्लेस किया गया था, ठीक है, एविक्ट किया गया था। देन राइट्स ओवर द नेचुरल रिसोर्सेस आर डिक्लाइनिंग, ये भी आपको आप मेंशन कर सकते हैं। देन ट्राइबल कल्चर एंड आइडेंटिटी डिक्लाइनिंग, आप अगर देखें कि एक एज पर द रिपोर्ट पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, 250 ट्राइबल लैंग्वेजेस हैव डिसअपीयर्ड, तो ये यहाँ पे आप चाहो तो इस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हैं, 250 ट्राइबल लैंग्वेजेस हैव डिसअपीयर्ड, ओके? तो ये सारे इश्यूज हैं, तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को सब्सटेंशिएट कर दिया, इस चीज़ इसको सेटिस्फाई कर दिया एग्जाम में, ठीक है? नाउ कंक्लूजन, in order to make commission more effective and functional, necessary action should be urgently taken in respect of presenting annual report, क्योंकि ये न्यूज़ में ही हाईलाइटेड था, ओके? बिकॉज डिसफंक्शनल मतलब they have not filed their annual report for the last 4 years, so it should be regularly filed. Then recruitment of officials and budgetary allocations, इस कमीशन के रिगार्डिंग budgetary allocations और अच्छे होने चाहिए, ठीक है? सो दिस कैन बी योर कंक्लूजन। तो इसके अलावा भी इफ यू वांट टू राइट एनी अदर थिंग ऑन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन कंक्लूजन, तो आप उस चीज़ को लिख सकते हो, ठीक? सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, अभी भी न्यूज़ में है, दिस इज आप पहले भी था और अभी भी ये न्यूज़ में है, क्योंकि आप जब, ओके, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन देन यू विल अंडरस्टैंड। द सुप्रीम कोर्ट इन अ recent judgment has acknowledged the enforcement directorate sweeping power under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), discuss the power assigned to ED under PMLA and its subsequent amendment, ठीक है? तो इनफैक्ट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था जितने भी पावर्स हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास अंडर PMLA, उसको अपहेल्ड किया था। और वाई आई एम रिपीटिंग दिस, दैट दिस इज अगेन इन न्यूज़, बिकॉज रिव्यू पिटिशन को शायद आई थिंक आज या कल में सुप्रीम कोर्ट उस पर
सुनने वाली थी, तो रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ था बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी डिलीवर्ड जजमेंट ऑन दिस एंड दे हैव upheld this, that enforcement director's sweeping power under PMLA, but then again review petition was filed and Supreme Court accepted to uh, I mean again go through the judgment. तो ये अभी भी न्यूज़ में. So you can see here, Supreme Court upholds power of arrest, raid, seizure under PMLA. So this was basically taken from the Hindu और बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये आया था. दिस वाज बेसिकली आवर आइडिया कि यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया. देन रेलिवेंस की अगर आप बात करें तो स्टैट्यूटरी बॉडी रेगुलेटरी इन वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज इज मेंशन इन आवर GS2 सिलेबस. तो यू कैन प्लेस दिस टॉपिक हियर, स्टैट्यूटरी. ठीक है. देन कीवर्ड डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एंड PMLA. So these two are keywords in this question. Introduction. Definitely this question is completely about ED. So better if you can describe briefly about ED and its power under PMLA. Briefly power को आप यहाँ पे चाहो तो डिस्क्राइब कर सकते हो और रेस्ट अगर आप चाहो तो ED के बारे में थोड़ा सा लिख दो एंड देन यू कैन राइट कनेक्टिंग लाइन थ्रू दिस फर्स्ट स्टेटमेंट कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला ED के बारे में. देन जो पावर्स है वो हम लोग एनी वे बॉडी में डिस्कस करने ही वाले हैं. देन बॉडी में राइट अबाउट द रिसेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे उसने ईच एंड एवरी पावर वाज यू नो अपहोल्ड was upheld in this judgment. तो उसके थ्रू हम लोग अपने बॉडी में उन पॉइंट्स को लिखें. देन कंक्लूजन राइट अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ जजमेंट एंड अदर वेज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. ठीक है. सो दिस इज ब्रीफ अप्रोच. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस इंट्रोडक्शन. एज आई टोल्ड यू कैन ब्रीफली डिस्क्राइब द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट और द इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन mandated with the investigation of economic crimes and violation of foreign exchange laws. It was founded as an enforcement unit within the Department of Economic Affairs of the Ministry of Finance. Presently, Directorate is under the administrative control of Department of Revenue under Ministry. So basically, it was previously under Department of Economic Affairs and now it is working under Department of Revenue. So I think this part got missed in our approach answer. तो जिनको अप्रोच आंसर हमने अपने स्टूडेंट के साथ शेयर किया है तो आप इनको यहाँ पे ऐड कर लेना. ओके. सो दिस इज I mean brief description of ED which you can write in your introduction and now relate to the context given in the question. तो कॉन्टेक्स्ट क्या दिया हुआ था जैसा मैंने पहले के भी कई क्वेश्चन में बताया था. फर्स्ट स्टेटमेंट डजंट हैव एनी डिमांड बट इट हैज़ गिवन सर्टेनली अ कॉन्टेक्स्ट. तो आप उस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो. ओके नो दिस इज ओके. सो दिस इज अबाउट पावर्स अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो. ओके. So Enforcement Directorate sweeping power under Prevention of Money Laundering Act and discuss the powers assigned to ED under. So basically ED and PMLA. So these two are the keywords. तो आपने अगर ED को डिस्क्राइब किया तो यू कैन डिस्क्राइब ब्रीफली रिलेटेड टू द PMLA कि जैसे ED को PMLA के अंदर जो पावर मिला है फर्दर इन टीम विद द इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेजिम. The Prevention of Money Laundering Act 2002 (PMLA) was enacted and ED was entrusted with its enforcement with effect from 1st July 2005. अब अगर हम मेन बॉडी की बात करें तो कनेक्टिंग लाइन टू द कॉन्टेक्स्ट गिवन इन द क्वेश्चन. तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बताया है वो चीज़ आप बता सकते हो. तो सुप्रीम कोर्ट इन इट्स रिसेंट verdict upheld the changes made to the Prevention of Money Laundering Act by the Parliament in 2019, further empowering the Central Probe Agency. ये आप यहाँ पे ला सकते हो. और उसके बाद कौन कौन से पावर को अपहेल्ड किया है वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है. ED हैज पावर टू मेक अरेस्ट, कैरी आउट सीजर, सर्च सीजर, इशू समन. इसमें क्या इशू था? इसमें बोला गया था दिस इज आर्बिट्रेरी बट सुप्रीम कोर्ट हैज टोल्ड नो दिस इज नॉट आर्बिट्रेरी, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉट आर्बिट्रेरी. एनी पर्सन हु इज सस्पेक्टेड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. तो ED has the power to make arrest, carry out search and seizure and issue summons. सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला. To make arrest without mandatorily providing a copy of enforcement case information report to the accused. तो ये भी हुआ था, ये केस भी था कि ECIR देने की जरूरत. अच्छा पहले हम लोग लेट्स अंडरस्टैंड दिस ECIR, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. जैसे FIR आपने यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस FIR.
तो कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस उसमें तभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है जब जब वो एफआईआर लॉन्च करे। तो एफआईआर विदाउट लॉजिंग एन एफआईआर, है ना, पुलिस कैन नॉट स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन इन केसेस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो एफआईआर और वो मैंडेटरी है। दिस इज, आई मीन, लॉजिंग एन एफआईआर इज मैंडेटरी मेंशन्ड इन द लॉ इटसेल्फ। जो रेस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ होगा, हमें उतना डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, उसमें ये मेंशन है कि पुलिस को एफआईआर लॉन्च करना है। ठीक है। ईसीआईआर क्या है? सी, ईसीआईआर इज बेसिकली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले ईसीआईआर बनाती है ईडी। बट पीएमएलए के अंदर में देयर इज नो सच प्रोविजन कि ये मैंडेटरी है ना। जैसे इन केस ऑफ एफआईआर इट इज मैंडेटरी और लॉ में मेंशन्ड है, बट ईसीआईआर में दिस इज नॉट मेंशन्ड। इट इज जस्ट फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड बाय ईडी। ठीक है। देयर इज नो लीगल कंपल्सन एंड देयर इज नो प्रोविजन अंडर पीएमएलए। ठीक है। इट इज जस्ट अ एस्टैब्लिश प्रैक्टिस, और ये अपने एक ऑफिशियल रिकॉर्ड पर्पज से रखा जाता है। दिस इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्ड पर्पज। ओके। एंड इन केस ऑफ एफआईआर क्या होता है? इट इज मैंडेटरी टू फाइल एफआईआर बिफोर इनिशिएटिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट फाइलिंग एन एफआईआर, फाइलिंग एन एफआईआर। ओके। तो ये चीज़ है। तो इसमें क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि विदाउट, है ना। तो जो केस गया था उसमें बोला था कि ईडी मस्ट हैंड ओवर ईसीआईआर टू द अक्यूज। बट सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के इस पावर को भी अपहोल्ड किया। दे कैन मेक अरेस्ट विदाउट मैंडेटरली प्रोवाइडिंग अ कॉपी ऑफ द इन्फोर्समेंट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दिस इज नॉट लीगल कंपल्सन, इट इज जस्ट एन इंटरनल डॉक्यूमेंट, है ना। तो इसीलिए ECIR is an internal document of the agency and not required to be supplied to an accused mandatorily. So this was also upheld by Supreme Court. Then a statement made before ED official can be used as evidence against the accused. So generally क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने में कोई भी ओरल एविडेंस प्रोड्यूस किया जाता है, वो उसको एविडेंस, ओरल स्टेटमेंट लिया जाता है, उसको एविडेंस नहीं माना जाता है। बट इन केस ऑफ ईडी, अगर कोई कोई स्टेटमेंट देता है, सो दैट बिकम्स एविडेंस इन इटसेल्फ। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। And in fact, the Supreme Court, I mean, mentioned that the provision is not marred by the constitutional guarantee against self-incrimination. जो I think you must be aware 20 सब आर्टिकल 323 उसमें है शायद सेल्फ इंक्रिमिनेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। तो दिस इज नॉट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। ओके। एंड देन द अक्यूज पर्सन हैज बर्डन टू प्रूव हिज इनोसेंस। जनरली क्या होता है, जो लॉ की और जो क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल है कि इनोसेंस until proven guilty, this is the principle. But in these I mean PMLA केस में क्या होता है कि the accused person has the burden to prove his innocence, that मान लिया जाता है कि यू आर नॉट इनोसेंट एंड यू हैव टू प्रूव कि आप इनोसेंट हो। तो ये सिर्फ ईडी में नहीं, कुछ और एक्ट्स हैं वहाँ पे भी है, जो स्पेशल एक्ट्स होते हैं उसमें ऐसी चीज़ें की जा सकती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज को दे दिया जाता है। ऑफेंसेस अंडर द लॉ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, इसको भी अपील्ड किया गया। So these are certain powers which have been given under PMLA and its subsequent amendment, and it was acknowledged by Supreme Court that yes, these powers are, I mean, मतलब ईडी के ये पावर्स सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्नॉलेज किया। कंक्लूजन में आप मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ों को आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे एक कंक्लूजन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केसेस एंड फॉरेन एक्सचेंज केसेस आर इंक्रीजिंग दीज डेज एंड दिस वर्डिक्ट विल सर्टेनली स्ट्रेंथन। अच्छा, अभी अभी ये क्वेश्चन आता इन द आई थिंक जस्ट 5 to 6 days, 5-6 days बिफोर दिस रिव्यू पिटिशन वाज फाइल्ड। तो आप चाहते तो वहां पे भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ये जो स्वीपिंग पावर अंडर पीएमएलए ईडी को दिया हुआ है, रिव्यू पिटिशन फाइल हुआ है एंड इट नीड्स टू बी लुक कि सुप्रीम कोर्ट अब अपने जजमेंट को किस तरह से देखती है। तो यू कैन मेंशन द सेम इन योर कंक्लूजन, बट
अभी जब ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था उस टाइम पे ये रिव्यू पिटिशन नहीं था, तो इस हिसाब से कंक्लूजन फ्रेम हुआ. मनी लॉन्ड्रिंग केसेस एंड फॉरेन exchange case are increasing these days, and this verdict will certainly strengthen the hands of ED in pursuing cases relating to money laundering. However, ED needs to improve its performance as it is facing a number of challenges like low conviction rate and lack of manpower. इस चीज को आप काफी कन्विक्शन रेट लो है, आई थिंक लेस देन 5%, आई गेस. एक बार आप इसको चेक कर लेना, बट कन्विक्शन रेट इज वेरी लो. Now, I think this question is very simple. The Rajya Sabha has become merely a secondary house rather than a second house in the Indian parliamentary system. Critically analyze, also compare and contrast the position of Rajya Sabha vis-a-vis a state legislative council. So this question has two parts. In fact, जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे आप अगर यहाँ पे देखें कि राज्यसभा आपको बताना है कि सेकेंडरी हाउस है या सेकेंड हाउस है. आई थिंक जो हम लोग बेसिक प्रिपरेशन करते हैं पॉलिटी का, उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं. राज्यसभा के पास क्या, राज्यसभा क्या सिग्निफिकेंस है, क्या पावर है, वेदर राज्यसभा ये सेकेंडरी हाउस और सेकेंड हाउस, इस तरह से चीज़ है. ठीक है. एंड देन द सेकेंड डिमांड है राज्यसभा versus state legislative council. So these two are the demands of the question. Here you can notice the question is of 15 marks, not 10 marks, and 250 words, not 150 words. तो इस चीज को आपको ध्यान देना है. ठीक है. तो इसमें this question is very simple. If you can simply how you should start your answer, you simply write very briefly about the Rajya Sabha. Then you can prove, you have to prove whether Rajya Sabha is a secondary or second house. दोनों चीज के रेस्पेक्ट में आपको पॉइंट्स मेंशन करना है. इन सर्टेन आस्पेक्ट राज्यसभा हैज लेसर पावर देन द लोकसभा, तो उन सारे पॉइंट्स को आप मेंशन करके बता सकते हो कि सेकेंडरी है ना. बट क्या ये सिर्फ उस पॉइंट की वजह से सेकेंडरी हाउस मान लेना, विल इट बी जस्टिफाइड? नो. तो उस चीज को आप कैसे मेंशन कर सकते, उसको सेकेंड हाउस के अंदर आप उन पॉइंट्स को रख सकते हो. ठीक है. सो दीज आर द की वर्ड्स, वेरी इजिली आइडेंटिफाइबल. क्वेश्चन कहाँ पे प्लेस किया जा सकता है, यू कैन सिंपली, ये तो सिलेबस में पार्लियामेंट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. एंड देन व्हाट आर द की वर्ड्स, मैंने बता दिया है. राज्यसभा के बारे में इफ यू मेंशन फ्यू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो दैट बिकम्स योर इंट्रोडक्शन. देन यहाँ पे देखो हमने लिखा भी है, यू हैव टू एस्टैब्लिश Rajya Sabha is not a secondary house, rather it has independent constitutional existence. So this will be your first part, and then compare and contrast the position of Rajya Sabha vis-a-vis state legislative council. So this will be your second part. Conclude the discussion by mentioning the importance of Rajya Sabha in the Indian context. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक previous year question बहुत ही, I mean just 2 years before this question was asked. Rajya Sabha has been transformed from a useless stepney tier to the most useful supporting organ in past few decades. Highlight the factors as well as the areas in which the transformation could be visible. So this was the question asked in 2020. So this is also one of the reasons that this topic becomes important. As I told you, you can simply mention very few lines, I mean a few lines about the Rajya Sabhas, and that will become your introduction. You can read here. Connecting line. अब राज्यसभा के बारे में आपने थोड़ा सा बताया, चूंकि राज्यसभा में बताना है कि वेदर इट इज सेकेंडरी और सेकंड हाउस, तो आप बता सकते हो कि बोथ द हाउसेस, आई मीन लोकसभा एंड राज्यसभा, हैव इक्वल पावर विद रिस्पेक्ट टू मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस. एग्जांपल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, बट दे हैव अनइक्वल पावर इन सेवरल अदर सिचुएशन. अब हम लोग मेन डिमांड पे आते हैं. रोल ऑफ राज्यसभा एज ए सेकंड हाउस. यहाँ पे आपको सी रैदर देन कंपेयरिंग, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे प्रोविजन बताना है जहाँ पे आप इंपॉर्टेंस राज्यसभा का बता, है ना. जैसे इफ आई कैन रिमेम्बर, आई वेंट थ्रू वन ऑफ द स्टूडेंट्स कॉपी, जहाँ पे उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है कि इक्वल पावर विथ लोकसभा, अनइक्वल पावर विथ लोकसभा, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा. सी उन्हीं पॉइंट्स को आपको इनके अंदर लिखना है इस तरह से कि हमें राज्यसभा का सिग्निफिकेंस दिखाना है. You have not been asked to compare Lok Sabha and Rajya Sabha or the powers of Lok Sabha and Rajya Sabha. वो चीज नहीं बोला गया. You have to substantiate that Rajya Sabha has a very significant role and it is a second house. तो जो पॉइंट्स आप लिखोगे ना कि राज्य सभा का स्पेशल पावर है एंड जो इन देयर आर इन मोस्ट ऑफ द केसेस राज्यसभा हैज गॉट, राज्यसभा गॉट इक्वल पावर आई मीन विद दैट ऑफ लोकसभा, उन सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिख दो.
So don't make this heading unequal power with Lok Sabha, equal power with Lok Sabha, special power of Rajya Sabha. Rather role of Rajya Sabha as a second house. इसके अंदर मैं आपको सारे पॉइंट्स लिखूँ, पॉइंट्स वही आएंगे बट आपको मेंशन डिफरेंटली करना है ताकि वो क्वेश्चन के हिसाब से you align your subhead as per the questions demand. So these points, I mean रिवाइजिंग चैम्बर, तो इसमें आप क्या मेंशन करते हो? कोई भी हेस्टी डिसीजन अगर लोकसभा में ले लिया गया, कोई हेस्टी बिल पास, कोई बिल अगर पास हो गया जिस पे बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन डिबेट नहीं हुआ है, तो राज्यसभा क्या करता है? राज्यसभा के पास वो बिल जाता है एंड देन राज्यसभा डेफिनेटली उसको और अच्छे से स्क्रूटनाइज करता है एंड देन अगर उसमें कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं तो लोकसभा को वो बिल वापस कर दिया जाता है. सो बेसिकली रिवाइजिंग चैम्बर से व्हाट डू वी मीन? इट लुक्स एट हेस्टी लेजिस्लेशन, प्रोवाइड्स अ रिवीजन ऑफ थॉट्स ओवर द इश्यूज. देन फेडरल चैम्बर, तो सिंस स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो इलेक्ट करते हैं, आई मीन मेंबर्स ऑफ द एमएलए फ्रॉम द स्टेट दे इलेक्ट द राज्यसभा मेंबर्स. ठीक है, तो ये फेडरल चैम्बर है, इट रिप्रेजेंट द स्टेट्स. एंड इनफैक्ट यहाँ पे देखिए, इफ यू कैन सी देयर आर सर्टेन एक्सक्लूसिव और स्पेशल पावर. एक तो आर्टिकल 249 312 हो गया. आर्टिकल 249 इज रिलेटेड टू बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई बिल बनाना है, सॉरी, स्टेट सब्जेक्ट से रिलेटेड, स्टेट सब्जेक्ट में जो भी मेंशन टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर कोई बिल लेके आना है, ओनली राज्यसभा कैन डू दैट. राज्यसभा कैन ऑथोराइज द पार्लियामेंट, है ना, कि अगर उसको लगता है कि दिस इज इम्पोर्टेंट एज फार एज नेशनल दिस इज बिकॉज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, दिस बिल दो मेंशन इन द स्टेट सब्जेक्ट नीड्स टू बी आई मीन नीड्स टू बी ब्रॉट इन द पार्लियामेंट, तो राज्यसभा उसके लिए रिजोल्यूशन लेके आती है. देन आर्टिकल 312, इट इज रिलेटेड अबाउट ऑल इंडिया सर्विसेज. कोई अगर ऑल इंडिया सर्विसेज इंट्रोड्यूस होगा, करेंटली व्हाट वी हैव आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. उसके अलावा कोई भी अगर ऑल इंडिया सर्विस आता है तो राज्यसभा कैन ओनली ऑथराइज द पार्लियामेंट. तो ये स्पेशल पावर हो गया बिकॉज दीज इशूज आर रिलेटेड टू स्टेट. फॉर एग्जाम्पल स्टेट सब्जेक्ट में कोई बिल, कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट मेंशन है और उस पर अगर पार्लियामेंट बिल नहीं ला सकती, लेकिन अगर राज्यसभा को लगता है कि दैट इज रिक्वायर्ड फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस, तो राज्यसभा कैन ऑथराइज. सिमिलरली ऑल इंडिया सर्विसेज जो स्टेट में अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है, पोस्टेड होते हैं बट दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये भी स्टेट से रिलेटेड है, तो इसके लिए भी राज्यसभा के पास पावर. डेलिबरेटिव चैम्बर, बिकॉज देर आर 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, लिटरेचर, साइंस, है ना, आर्ट, सोशल सर्विस, तो दैट एनरिच द डिबेट ऑन पब्लिक इशूज, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में वो भी हेल्प करता है. देन चैम्बर ऑफ कंटिन्यूटी, राज्यसभा डज नॉट डिसॉल्व, ओके, it is a permanent chamber, it is not subjected to dissolution. Chamber securing executive accountability, देखिए जो जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, एट 8 out of 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, they work under the direct control and guidance of chairman of Rajya Sabha. तो वहां से they can secure the executive accountability. चैम्बर ऑफ वेंटिलेटिंग पब्लिक ग्रीवियंसेस, कोई भी जो पब्लिक इशू है दैट कैन बी रेज्ड इन द राज्यसभा थ्रू व्हाट कॉलिंग अटेंशन, स्पेशल मेंशन, क्वेश्चन आवर, इन सब चीज़ों से वहाँ पे मेंशन हो सकता है. देन equal status with Lok Sabha as far as introduction and passage of ordinary bills, constitutional amendment bills, election, impeachment of president, etc are concerned. तो बहुत सारे जो इस तरह के प्रोविजन है, राज्यसभा स्टैंड्स इक्वल टू दैट ऑफ लोक सभा. सो थ्रू दिस प्रोविजन वी कैन स्टैब्लिश दैट राज्यसभा का अपना एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस है, एग्जिस्टेंस है, एंड दैट शोज दैट द राज्यसभा इज नॉट अ सेकेंडरी हाउस, रादर अ सेकेंड हाउस. एंड एज फार एज सेकेंडरी हाउस के जो पॉइंट्स लिखने हैं कि कहाँ पे ऐसा है कि जहाँ पे राज्यसभा के पास कम पावर है. सो दीज आर सर्टेन प्रोविजंस. द मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा. Related to money bill only, the Rajya Sabha can only discuss the budget without right to vote on demands for grant. वो लोकसभा ही कर सकती है, ठीक है. नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन नॉट बी पास इन द राज्यसभा, ठीक है.
द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट्स। अगर कोई डेडलॉक हो जाता है, अगर कोई डेडलॉक हो जाता है बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा कोई बिल, तो ज्वाइंट सिटिंग होता है, एंड इन द ज्वाइंट सिटिंग दैट इज प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड नॉट द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एंड सिंस लोकसभा हैज ग्रेटर नंबर्स, तो जनरली जो ज्वाइंट सिटिंग होता है तो लोकसभा wins the battle. So these are certain places or provisions where Rajya Sabha has got lesser power or significance as in comparison to Lok Sabha. But still हमें क्या देखने को मिला कि जैसे यहाँ पे आप अगर देखें मेजरली, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू, आप यहाँ पे बोल सकते हो फाइनेंशियल मैटर्स एंड देन कंट्रोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन दोनों को अगर आप देख लें, कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो राज्यसभा इन ऑल अदर मैटर्स have broadly equal power and status with that of Lok Sabha. So through this we establish that Rajya Sabha is a second, not a secondary house. Now second demand of the question is what? Comparison between Rajya Sabha and Lok Sabha. Sorry, State Legislative Council. Both are similar. See, comparison में नॉट नेसेसरली कि आपको डिफरेंस ही बताना है, कि आप अगर कंपेयर कर दे दिस इज सिमिलैरिटी। तो बोथ आर सिमिलर पावर विद रिस्पेक्ट टू सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर टू फॉर्म गवर्नमेंट, मतलब दोनों हाउस से मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक है। बट मिनिस्टर्स आर नॉट अकाउंटेबल टू द राज्यसभा, दे आर अकाउंटेबल टू द लोकसभा। सिमिलरली यहाँ पे भी दे आर अकाउंटेबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। Now, as far as differences are concerned, so the existence of council in states depend on the will of state assembly. तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के विल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे इफ़ यू कैन रीड आर्टिकल 169, वहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है कि इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट passes a resolution for the creation of council by special majority, parliament may by law provide for the creation. Similarly अगर abolish भी होता है तो वो उस तरह से ही होता है। So existence जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का डिपेंड करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, बट इन केस ऑफ राज्यसभा अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा एस्टैब्लिश चैम्बर है, डज नॉट डिपेंड ऑन लोकसभा और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। In ordinary bill, Rajya Sabha has equal power vis-a-vis Lok Sabha, whereas Council has very limited power vis-a-vis Assembly. Council can cause a maximum delay of 4 months. जब पहली बार फॉर एग्जांपल अगर उतने डिटेल में भी डिस्कस नहीं करते हैं, बट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई बिल पास किया और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास गया, या तो ये बिल को एक्सेप्ट कर ले सिमिलरली, या फिर अगर कोई इनको कुछ रिवाइज कराना तो ये अपने रिकमेंडेशंस को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेज सकता है, या फिर अगर अपने पास ये बिल रख सकता है 3 मंथ तक विदाउट एनी अमेंडमेंट्स और मॉडिफिकेशंस, तो ये पास मान लिया जाता है, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर इसने कुछ रिवीजन के लिए भेजा और रिवीजन के लिए आया एंड देन अगेन उसके बाद अगर ये 1 मंथ से ज़्यादा के लिए रख, मतलब मैक्सिमम ये कितने दिन तक रिवीजन के बाद रख सकता है, 1 मंथ। तो एट फर्स्ट इंस्टेंस ये कितना डिले कर सकता है, 3 मंथ्स, एंड एट द सेकेंड इंस्टेंस इट कैन डिले ओनली फॉर 1 मंथ, ठीक है। तो मैक्सिमम डिले कितना कर सकता है, 4 मंथ्स का, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। बट राज्यसभा के पास ऑर्डिनरी बिल के केसेस में, इन केसेस ऑफ ऑर्डिनरी बिल हैज इक्वल पावर, ठीक है। अगर राज्यसभा ने जो लोकसभा को अमेंडमेंट कुछ मॉडिफिकेशन बताया एंड इफ लोकसभा डज नॉट डू दैट, देन इन केस डेडलॉक हो जाता है, एंड इन केस ऑफ डेडलॉक देन ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन। आई थिंक द सेम इज द नेक्स्ट पॉइंट, but that doesn't happen in case of legislative council. Rajya Sabha is also, acha, there is this provision, ye joint sitting wala you can see here. Rajya Sabha participates in joint sitting of the two houses, whereas council remains always subordinate to assembly. There is no provision of council. Then Rajya Sabha has some special power as participating in president's election, enabling parliament to form all India services. Council के पास इस तरह की कोई special power. So these were the major differences and similarity. So basically compare and contrast the position of Rajya Sabha and state legislature. These were the important points. वो आप यहाँ पे mention कर सकते हैं. So through this we have satisfied both the demands of the question. Conclusion, आप राज्यसभा के importance के बारे में बता सकते हो.
क्वेश्चन, क्योंकि मेनली आप अगर देखें तो राज्यसभा के बारे में ही है, सिग्निफिकेंस के बारे में। द इम्पोर्टेंस ऑफ राज्यसभा एज अ रिवाइजिंग बॉडी टू रेस्ट्रिक्ट hasty legislation and providing an enriched second opinion is clearly visible। तो आप अगर कंपेयर भी कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल तो भी आपको समझ में आ रहा है कितना सिग्निफिकेंट है। एंड देन व्हेन यू आर मेंशनिंग द पॉइंट्स बिलो दैट हेड, सब हेड, राज्यसभा एज ए सेकेंड हाउस, तो वहां पे भी आपको ये क्लियरली विजिबल है कि हाउ इंपॉर्टेंट राज्यसभा इज। तो आप इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। इट्स फंक्शनैलिटी एज ए सेकेंड चैम्बर rather than secondary or subordinate chamber is crucial and it needs to be maintained। सो आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हो। इफ अगर आपके पास राज्यसभा से रिलेटेड कोई करंट कॉन्टेक्स्ट का कुछ भी है, आप उसको अगर डालना चाहते हैं कंक्लूजन में, तो आप उस चीज को भी डाल सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, highlighting the prevailing issues suggest measures to tackle them and make the system more effective and efficient। So again, this question also have just, here is the first statement and then the demand start, highlighting the prevailing issues, this is the first demand and this is the second demand। okay, so जुडिशरी के बारे में क्वेश्चन है, तो हाउ यू शुड स्टार्ट दिस आंसर। ओके, सो अगेन ये हमेशा वैसे भी न्यूज़ में रहता है। सो दिस वाज टेकन फ्रॉम, दिस वाज इन न्यूज़, यू कैन सी ऑन May 10, 2022, द क्लॉग्ड स्टेट ऑफ इंडियन जुडिशरी, द हिंदू से ये लिया गया है। वेरी रेलिवेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो you can find this topic of judiciary under this syllabus topic, structure, organization, functioning of executive and judiciary, यहाँ पे। ठीक है, then keywords, issue with the judicial system, how to make judiciary more efficient and effective and efficient, then introduce judiciary in Indian context, ये चीज़ आप बता सकते हो। मेन बॉडी में very identifiable two demands, highlight prevailing issues and measures to tackle them, then end your discussion on a positive note by mentioning cases of judicial activism such as basic structure, PIL, या फिर यू कैन मेंशन एनी अदर थिंग रिलेटेड टू क्यों इफेक्टिवली फंक्शन करना जुडिशरी का रेलिवेंट है, उसके सिग्निफिकेंस पे आप अगर 2-3 लाइन लिख दें तो दैट विल ऑल्सो बी अ गुड कंक्लूजन। So you can start like this: the judiciary acts as a guardian of Constitution of India and protects fundamental rights of citizens by ensuring that legislature and the executive do not exceed their constitutional boundaries and prevents them from arbitrary exercise of power। ठीक है, इसके बाद आप अगर चाहो तो आप मेंशन कर सकते हैं इफ यू वांट टू रिलेट इट टू द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे ट्रिमेंडस प्रेशर की बात आई है। तो रिसेंटली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने हाईलाइट किया था इस इशू को। तो आप बता सकते हो, यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो कि यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं, हाउएवर रिसेंटली CJI हैज हाईलाइटेड, मतलब यहाँ पे आप बता सकते हो वेरियस इश्यूज। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो एंड देन यू कैन कम टू द मेन बॉडी, प्रिवेलिंग इश्यूज इन द जुडिशरी। सो दीज आर द प्रिवेलिंग इश्यूज, जुडिशियल डिले एंड हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस। ठीक है, तो बैकलॉग ऑफ अराउंड 4.7 करोड़ केसेस हैं अभी इंडियन जुडिशरी के पास। इसमें आपको बाइफर्केशन देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कितना है, हाई कोर्ट के पास कितना है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट के पास कितना है, ये देने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल इतना केसेस पेंडिंग है, बिकॉज ओवरऑल जुडिशरी की बात हो रही है। तो अगर हम ये नंबर मेंशन करते हैं फैक्ट, so that is sufficient, you don't need to bifurcate the number among the various hierarchy of courts, तो वो जरूरत नहीं। ओके, देन लो जज टू पॉपुलेशन रेशियो अभी क्या है, फॉर 1 million वी हैव 20 जजेस, और होना कितना चाहिए, 50। सो दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट एज फार एज जस्टिस इज कंसर्न। तो आपको पता है कि जब ये नंबर कम है, जजेज ही कम है, तो जस्टिस डिले से आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, वैकेंसी 40% वैकेंसी इज प्रिवेलिंग इन वेरियस हाई कोर्ट्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, rather than simply mentioning the point, like आप अगर ये इतना यहाँ मेंशन कर दो, लो जजेस टू पॉपुलेशन, वैकेंसी मेंशन कर दो, आपको फैक्ट्स मेंशन करना है। ठीक है ना, आपको फैक्ट्स मेंशन करना है, दैट सब्सटेंशिएट गिव, दैट गिव्स वेट टू योर आंसर। तो ऐसा नहीं है कि ये आप केवल वैकेंसी लिख दो, लो जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो लिख दो, जुडिशियल डिले एंड हाई पेंडेंसी रेशियो विदाउट कोटिंग दिस फैक्ट, तो नंबर आपको मार्क्स मिलेंगे बट वो कम मिलेंगे।
you have to substantiate through various data and facts. Yes, if you do not have and if you are unable to recollect, then definitely उस केस में तो कुछ नहीं कर सकते आप केवल अगर पॉइंट हेड्स लिख देते हो या उसका एसेंस लिख देते हो तो दैट विल ऑल्सो वर्क. सो वैकेंसीज में 40% ऑफ वैकेंसीज प्रिवेलिंग इन एयरपोर्ट. अगर आप नंबर की बात करें तो जो टोटल जो अप्रूव्ड स्ट्रेंथ है सैंक्शन स्ट्रेंथ है दैट इज 1104 एंड करेंटली 717 जजेस आर. But this is not important. If you are mentioning this 40% data, that is sufficient. Inadequate representation as far as minority women are concerned, तो representation is very less. And इससे क्या होता है कि वी आर अ डेमोक्रेसी, तो हर जगह पे ये रिप्रेजेंटेशन का एक एक फेयर रेशियो रहना चाहिए. सो दैट इज ऑल्सो one issue in our judiciary. Then lack of transparency. See, RTI is not applicable on our judiciary. And at the same time there is a very opaque judicial appointment. Collegium system चलता है. NGAC गवर्नमेंट लेके आई थी, उसमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी का था बट वो नलीफाइड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. तो अभी का जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम है दैट इज कॉलेजियम. तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी होती है एंड दे अपॉइंट जजेस. दैट सिस्टम इज वेरी ओपेक. नो वन कैन गेट द इंफॉर्मेशन. और इन वैसे भी फॉर ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव और कोई भी कैसे जस्टिस क्या डिलीवर हुआ नहीं हुआ, तो देयर इज नो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट विच इज एप्लीकेबल. आई मीन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन जुडिशरी. ओके. देन लेस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. अभी भी बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत ही इनएफिशिएंट है, बहुत ही डिलेड, बहुत स्लो काम करती है. सो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम ऑफ आवर जुडिशरी. ठीक है. इसके अलावा भी इफ़ यू हैव एनी रेलिवेंट पॉइंट तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं. मेजर्स टू स्ट्रेंथन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम. फाइलिंग द सैंक्शन पोस्ट. तो पर्टिकुलरली जो सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात आती है तो वहाँ पे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को अगर हम लेके आए तो दैट कैन एटलीस्ट फिल द वैकेंसीज क्रिएटेड वैकेंसीज एट सबऑर्डिनेट लेवल. वहाँ पे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस और कई बार इस आइडिया को फ्लोट किया भी गया. ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. सैंक्शनिंग न्यू पोस्ट जैसा वहाँ पे मेंशन था कि करेंटली 20 जजेस फॉर 1 मिलियन, सो इट शुड बी 50. तो अगर हम नए पोस्ट को सैंक्शन कर दें तो दिस नंबर कैन बी इंक्रीज. देन you will be surprised to know 50% pending cases are basically related to government. Okay. मतलब किसी पीएसयू ने दूसरे पीएसयू पे केस किया हो, किसी इंश्योरेंस कंपनी ने दूसरे रेगुलेटरी बॉडी पे केस किया हुआ है. मतलब गवर्नमेंट की बॉडीज ने अपने एक दूसरे का केस किया हुआ है एंड दैट हैज रीच्ड टू द सुप्रीम कोर्ट लेवल. और वो क्या कर दिया है आप ये समझ रहे हो, यू कैन सी द नंबर 50% केसेस. तो पूरे पेंडिंग केसेस में 50% केसेस ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट को अपने लेवल पे डील कर लेना चाहिए. ठीक है. तो इफ गवर्नमेंट कैन मेक सम इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट और प्रॉब्लम को वहीं पे सॉल्व कर दें एंड दैट शुड नॉट रीच टू द सुप्रीम कोर्ट और द जुडिशियरी, तो उससे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस विल बी रिड्यूस्ड. ओके. देन यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सच एज एआई, मशीन लर्निंग. यहाँ पे मैंने लिखा है सुवास एंड सुपेस. सुवास इज फॉर लैंग्वेज translation and SUPES is for efficient administration. Just a second, I'll tell you. Yes, SUVAS is basically Supreme Court Vidhik Anuvad software to translate judgment in regional languages, and SUPES is basically Supreme Court portal for assistance in court efficiency to collect relevant facts, laws, and make them available for judges. अब जजेस को अगर कोई प्रीवियस केसेस देखना है, कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स वगैरह देखना है तो वो सारा पेपर में रहता है, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. और अगर मान लो डिजिटली वो कंप्यूटर में अवेलेबल है टू फाइंड दैट डाटा इज़ वेरी डिफिकल्ट. बट इफ दीज टूल्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, मशीन लर्निंग और एआई, तो वो रेलिवेंट केसेस कैन ईजिली बी मेड अवेलेबल फॉर द जजेस. तो यू मस्ट मेंशन दिस सुवास एंड सुपेस. Use of scientific and technical tools like DNA matching, facial recognition, recording criminal history. तो ये जितना इम्प्रूव होगा तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन उतना फास्ट होगा. ठीक है. तो जो जस्टिस डिलेड की बात हो रही थी तो दैट सिचुएशन विल इम्प्रूव. देन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, लोक अदालत. So these alternative dispute resolution mechanism must be explored in most of the at least petty cases, civil cases में इन सब
जो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल उनको एक्सप्लोर किया जाना चाहिए rather than reaching to judiciary. लोक अदालत शुड बी ऑर्गेनाइज्ड रेगुलरली फॉर सेटलिंग सिविल एंड फैमिली मैटर्स. अननेसरी ये सारे केसेस हमारे जुडिशरी के पेंडेंसी को इंक्रीज करते हैं. देन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ कोर्ट्स, बहुत ये भी एक सजेशन रहता है. देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस फास्ट ट्रैक कोर्ट्स. अगर बहुत सारे केसेस में जैसे पॉलिटिशियन को कन्विक्ट करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ऐसे ही बहुत सारे और चीज़ों में अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया जाए तो that will also the solve this problem of judicial pendency and delayed justice. Then Indian Court and Tribunal Service, ये आपको मेंशन जरूर करना चाहिए. दिस वाज इन न्यूज ICT. ठीक है. दिस इज बेसिकली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट. इस सर्विस की बात की गई थी. दिस वाज हाईलाइटेड इन इकोनॉमिक सर्वे 2019. ओके. सो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए अगर ये इंडियन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल सर्विस एस्टैब्लिश की जाए so that will improve the productivity of the court. ठीक है. So these are certain measures through which our judiciary, Indian judicial system can be strengthened. Conclusion, तो judiciary के significance को you can highlight that trust and confidence of public is key to the success of judicial system. A timely and effective reform is necessary to reduce its burden and make it more effective and responsive to the cause of common man. Now, the last question, question number 7. So these tests are basically part of micro test. So how we have designed the course, like in micro we are asking 7 questions, in mini we are asking 13%, and in full length 20%. So these tests are part of micro. So this is the last question, question number 7. Illustrate how pressure groups have emerged as a strong mechanism for making democracy participatory and responsive. Also describe the different techniques through which they influence policies in India. So the first thing that you must notice here, similar previous year question. So that is why we frame this question. As I told in the introductory orientation video, that we generally take reference from the previous year question. So what are the methods used by farmer organization to influence the policy makers in India, and how effectively are these methods? This was asked in 2019. Then another question in 2017 was, how do pressure groups influence Indian political process? Do you agree with this view that informal pressure groups have emerged as powerful than formal pressure groups in the recent years? Okay, so two questions have been asked in the recent times. So this topic is important. Okay, and specifically pressure group is mentioned in the syllabus. Pressure group. Okay. Now keyword is emergence of pressure group and techniques used by them. Pressure group is the keyword in this particular question. So if you define pressure group or briefly describe pressure group, so that will become your introduction. Then point out how pressure groups have emerged over a period of time, and actually here we need to add that how it has made our democracy participatory and responsive. Okay, mention various techniques used by them, and conclude by mentioning importance of pressure groups at present. So this is how you can define or describe pressure group. A pressure group is a group of people who are organized actively for promoting and defending their common interest. यहाँ पे कई लोग इसका बहुत इंपॉर्टेंस है. हर प्रेशर ग्रुप अपने कॉमन इंटरेस्ट को रेज करता है. if any pressure group, let's say Medical Council of India, so this is for the doctors, so they are not going to raise any issue, I mean, which are not related to them. So pressure group generally they promote and defend, not generally, rather they defend and promote their own interest. तो इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, इट एम्स टू exert pressure on the government to bring a change in the public policy. So अगर आपके पास कोई और डेफिनेशन है तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हो. Now pressure groups emerge to make democracy participatory and responsive. Yes, अब प्रेशर ग्रुप आप अगर एग्जांपल्स देखोगे, अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. तो हर प्रेशर ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि राइट नाउ वी टॉक्ड अबाउट MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना. और आप बात करो फिक्की, है ना, जो
फॉर बिजनेस पीपल। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पब्लिक पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हैं। मतलब कोई भी डिस्कशन डिबेट करना हो उनके अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, सो बेसिकली दे सर्कुलेट अमंग देयर मेंबर्स व्हाट आर द इश्यूज, और हम गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी मीटिंग्स होती है। तो सो थ्रू दिस दे इंश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन, इंश्योर गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। सपोज कोई भी गवर्नमेंट अगर लेट्स से मेडिकल फ्रेटर्निटी से रिलेटेड सब गवर्नमेंट ब्रॉट एनी बिल, है ना, और उस आई मीन अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है लेट्स से अबाउट मेडिकल फ्रेटर्निटी और डॉक्टर्स के रिगार्डिंग, जो कि प्रॉमिस था कि ऐसा करना है, तो दीज बॉडीज एक्चुअली इंश्योर अकाउंटेबिलिटी और उनको याद दिलाती है कि ऐसा प्रॉमिस किया हुआ था और आपने नहीं किया। प्रोवाइड्स इनपुट टू द गवर्नमेंट फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है। अब कोई भी आप एग्जांपल ले लो, जैसे लेट्स टेक एनी अदर लेट्स से जैसे किसान आंदोलन, उसमें एक जो संयुक्त किसान सभा एज फार एज आई रिमेम्बर और भारतीय किसान सभा, दिस वाज द एसोसिएशन विच वाज इन्वॉल्व इन दिस आंदोलन। तो उन 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 वो क्या करते थे, वो अपने इनपुट देते थे गवर्नमेंट को कि हम लोग एग्जैक्टली चाहते क्या। तो ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो फिक्की हो, चाहे वो एसएचएम हो, चाहे एमसीआई हो, चाहे कोई और भी बॉडी हो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का अलग एसोसिएशन है, कोई भी और बॉडी, पॉलिटिकल पार्टीज, वो भी एक प्रेशर ग्रुप ही होता है। तो वो दे गिव इनपुट टू द गवर्नमेंट फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देन जब पॉलिसीज बन जाती है दे प्रोवाइड फीडबैक। ठीक है। स्प्रेड अवेयरनेस अमंग देयर मेंबर्स एंड पब्लिक इन जनरल। फॉर एग्जांपल अगर एक्साइज या कोई टैक्स बढ़ता है विच अफेक्ट्स अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, तो उससे रिलेटेड अगर कोई प्रेशर ग्रुप है, तो वो क्या करता है उस चीज़ से वो गवर्नमेंट को फीडबैक भी देगा। ठीक है। गवर्नमेंट को इनपुट भी देगा और अपने मेंबर के और इन जनरल पब्लिक को भी बताएगा कि क्या पॉलिसी की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रही। improve the quality of governance through debate and discussion, related to the first point, ensure public participation। तो गवर्नेंस का हम क्वालिटी डिसीजन और लेट्स से जो कोई भी डिसीजन जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए लेते हैं, तो वो तभी ज़्यादा बेहतर होता है जब दैट कम्स टू डिबेट एंड डिस्कशन। तो डिफरेंट प्रेशर ग्रुप अपने में फॉर देयर ओन इंटरेस्ट वो continuous debate and discuss करते हैं, एंड those inputs are being passed on to the government and और उसके बाद क्या होता है through various feedback and everything the quality of governance improves। So these are the ways that pressure group actually makes democracy participatory and responsive। So how pressure groups have emerged, आप देख सकते हो बिजनेस ग्रुप में क्या है, फिक्की है, एआई ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ये है। देन ट्रेड यूनियन का एआईटीयूसी, बीएमसी। तो ये सारे आपके, यू मस्ट मेंशन दिस बिकॉज सी क्वेश्चन में क्या बोला, इलस्ट्रेट हाउ दीज प्रेशर ग्रुप्स हैव इमर्ज्ड। तो आपको बहुत सारे प्रेशर ग्रुप के बारे में यहाँ पे लिखना है। एग्रेरियन ग्रुप्स में बीकेएस हो गया, ऑल इंडिया किसान सभा हो गया। प्रोफेशनल एसोसिएशन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो गया। आई एम सॉरी, आई वाज रिपीटेडली मेंशनिंग मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। आई एम रियली सॉरी, इट शुड बी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ओके। देन बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में एबीवीपी है, एनएसयूआई है। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में आरएसएस, बीएचपी है। कास्ट ग्रुप मारवाड़ी एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ। तो ये जितने भी प्रेशर ग्रुप ये क्या करते हैं, इनका जो खुद का इंटरेस्ट है, इनके जो कंसर्न है, ये गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करते हैं थ्रू डिबेट डिस्कशन। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं उसके थ्रू, एंड दे ट्राई टू ब्रिंग चेंज इन द पॉलिसी दैट फेवर्स देम। So that is the main objective of pressure group. So this was the another demand, second demand of the question. Describe the different technique through which they influence policies in India. So these are the major technique: electioneering, lobbying, and propagandizing. So these are the techniques that they use. Electioneering मतलब वो डायरेक्ट तो इलेक्शन करते नहीं है, बट वो चाहते हैं कि मेरा कोई मेरे जानने वाले कोई और जो हु फेवर्स अस वैसा कोई आदमी वहां पे जाके बैठे, तो वो कॉन्टिन्यूसली उस पार्टी को या लेट से किसी इंडिविजुअल मेंबर को सपोर्ट कर सके। तो दिस इज व्हाट इलेक्शनरिंग मींस। ओके। So though they do not directly participate in election, they place in public offices persons who are favorable towards their interest। लॉबिंग क्या होता है, ठीक है, they persuade public officers, policy makers to adopt, enforce the policies that they think they uh, will prove most beneficial to their interest। तो लॉबी करते हैं।
ठीक है, परसुएट करते हैं पब्लिक ऑफिसर्स को कि इस तरह की पॉलिसी लेके आइए, दिस विल बेनिफिट दिस इंडस्ट्री, अगर वो लेट से किसी इंडस्ट्री के बारे में है तो। एंड देन प्रोपेगेंडाइजिंग में क्या होता है कि दे इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, सी डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पब्लिक ओपिनियन। तो वो पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इनडायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो सिंस द गवर्नमेंट इज इन अ डेमोक्रेसी सब्सटेंशियली अफेक्टेड बाय पब्लिक ओपिनियन, तो अगर वो प्रोपेगेंडा करके और नैरेटिव को इस हिसाब से मोल्ड करते हैं दैट इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट, तो उनकी बात को मान ली जाती है। तो दीज आर द मेजर वेज और टेक्निक्स थ्रू विच प्रेशर ग्रुप exert pressure on the government. Okay, and apart from this, जो अलग जो emerging tools हैं उसमें सोशल मीडिया, मास मीडिया, स्ट्राइक कॉल, ये सारी चीजें हैं। देन कंक्लूजन, प्रेशर ग्रुप के इंपॉर्टेंस को आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स आर हेल्पफुल एलिमेंट of the democratic process as they pursue interests of individuals who do not have capacity to raise their concern on their own, but they need to remain focused on processes like consultation, negotiation, compromise, and avoid following illegal, illegitimate paths to cause unnecessary disruption. And if you simply want to mention just the significance of pressure group, आप उसको भी mention करके can leave there. So this was all about the 7 questions in this particular test. I hope I have tried to clarify uh, all, all the important points that should have been there in your answers, and approach. Basically, the main objective to tell you the approach, how you should approach the answer rather than the points. कंटेंट का क्या होता है, इफ यू रीड द कंटेंट, तो कंटेंट आपके पास है, बट उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, आपको अपने आंसर में फ्लो कैसे लेके आना है, दीज वर द मेन ऑब्जेक्टिव of this test discussion. I hope you find this useful. So if you have any question, you can ask. So if you, as I told you in the beginning, if you want to register in this program, then you can reach us through these mediums. Like you can visit our website, you can email us, or you can call or WhatsApp on these 2 numbers, or you can telegram us on this telegram ID. Okay. Thank you. Thank you very much.